and here is the recording. Okay, so gentlemen, हमारा ये लेयर 2 का आखिरी मॉड्यूल है। तो हमने सबसे पहले अगेन बताता चलूं कि दिस होल इंटरनेट इज वर्किंग ऑन TCP/IP सूट. This whole network is working on TCP/IP suite, as I know, as we already know. Okay, now if it is based upon the TCP/IP model, so it has 5 different layers, starting from the physical layer, going to the data link layer, then to the network layer, then to the transport layer, and finally to the application layer. Ladies and gentlemen, we saw in the last class that this data link layer is further divided into 2 sub-layers. The upper layer is called Logical Link Control, LLC, and the lower layer is called MAC, which is the Medium Access Control layer, sub-layer. Ladies and gentlemen, we saw that this layer is a software. This is based on software, and the job of this layer is a liaison officer between the upper software layers and at the lower, which is the hardware, where we have the MAC as well as the physical layer. So it communicates, it takes the information from the MAC, which MAC is there, and based upon this, it informs the upper layer to provide the data accordingly. Like, for example, you know that here we can have different MACs. For example, we can have the fast Ethernet. For example, we can have the fast Ethernet here. We can have the, for example, gigabit over copper. We can have gigabit over fiber and different options. And like, for example, we can have even if we talk about the Ethernet, it can provide you a speed of 10 megabit per second, 100 megabit per second, 1 gig, 10 gig, 40 gig, and reaching to the 100 gig range. So different, which means they are the different Ethernet flavors. They are the different Ethernet flavors. Okay. But it is not only the Ethernet which is at the MAC layer. You have seen that here we can have another very important, and that is your WLAN. And again, WLAN can be having, because you know that your Ethernet is using the standard which is 802.3, while your LLC takes the standardization of 802.2. Similarly, you may have here 802.11, which is WLAN. You may have here 802.5, which is 802.5, which is token ring. Token ring. Here is the Wi-Fi. It might be 802.15, 802.16, and so on. 802.15 is your Bluetooth. Always you use 802.16 is your WiMAX. So we have different MACs possible. And this information is passed to the LLC, and LLC communicate with the network layer, between the software, and orders, in other words, direct to the upper layer to act accordingly. So we have seen that in this chapter or module today, generically we talked about these 2 layers, but now we will be specifically talking about the Ethernet. That is the reason the name of this module is Ethernet switching. Ethernet switching. So the 2 very important, I may call MACs. One is your Ethernet, which is 802.11.2.3, and the other one is 802.11. And why they are different? We have seen that the 2 basic jobs of this MAC is the first one is the encapsulation, and the other one is the medium access. Medium access. So definitely medium को access करने के लिए all these technology doesn't have the same method. So definitely then they have the different MAC. So because of this, their frame structure is not the same. Frame structure is not the same. And Ethernet is one of the protocol, as you know. Ethernet is one of the protocol at the data link layer. So it must have a syntax because it is a protocol. It must have a syntax. It must have a semantic. जी, अगर यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कम ऑन.
कोई क्वेश्चन भी बनता है तो क्वेश्चन करने से मत घबराया करें, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं करते तो वो क्वेश्चन फॉरएवर रह जाता है। जब भी आपसे कोई आपके सामने उसका नाम भी लेगा तो आप कहेंगे ओ हमसे रह गया। तो अगर कोई क्वेश्चन है, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई भी इसमें क्वेरी है कोई इस इंट्रोडक्शन में, क्योंकि इसी इंट्रोडक्शन को लेकर मैंने इस चैप्टर को आगे लेके चलना है जी। इज देयर एनीवन ऑनलाइन? नूरुल्लाह, जुनैद, तलहा, एनीवन, नईम, लाइबा, राबिया, anyone? Sudesh, after a very, very, very long time, Sudesh is there. So, in the question is clear. Okay, Nurullah, thank you for the information. So, gentlemen, if it is clear, then the objectives of my today's class are the following. Number one, I will be explaining you, and we have already talked about that, and that is the Ethernet frame. Not in this course, but in the next course, we'll be talking about the Wi-Fi frame. And we will see that the two frames are not the same. It means the syntax of the two protocols or the two frames is not the same, because the two are using different medium access methods. One is using, for example, maybe using CSMA CD, while the other one, which is Wi-Fi, is using CSMA CA. It is totally different. If it is Ethernet, if it is a switched Ethernet, it is neither using CSMA CA nor CSMA CD. It is an switched Ethernet. So that's the reason it has a different frame structure. So we'll be talking about the frame structure of the Ethernet. हमने last उसमें भी पढ़ा था. We'll be talking about an important part, which is the MAC addresses. We have already talked about the MAC address in the last class as well. That is a 48-bit or 12 bytes, 6 bytes or 12 hexadecimal characters address. Then that will be important for us, because these two topics we already know. Based upon this MAC address, the switch makes a switching address table, MAC address table. MAC address table. तो कैसा हम देखेंगे कि इस MAC address table का फंक्शन क्या है, क्यों आखिर इसको बनाया जा रहा है. Then we will be talking about the switch speeds and forwarding methods, जिसको हमने कुछ बात की भी थी. If you remember, हमने बात की थी switch and forward और हमने बात की थी cut through. तो हम उसको दोबारा से थोड़ा सा लेंगे. तो इसकी बेस के ऊपर अगर ये चैप्टर खत्म हो जाए, जो कि हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. और इसलिए कहता हूं कि अगर टाइम मिले, क्योंकि आजकल आपके पास टाइम है, यू आर ऑन वेकेशंस, कह रहे समर वेकेशंस में हैं आपका, तो आप इन चैप्टर्स को 4, 5, 6, 7 को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जो ही हम इसको खत्म करेंगे तो जिस तरह आपने 1 to 3 का एग्जाम दिया, आपको 4 to 7 का एग्जाम मिल जाएगा. तो आखिरी दिन पे जब आप सोचते हैं कि आखिरी दिन पे आखिरी घंटे में पढ़ूंगा, वो नहीं होता. और बार बार बताता हूं कि चीट करके शायद सर्टिफिकेट तो मिल जाए. वो भी हो सकता है कि मैंने पहले कोर्स के पहले एग्जाम के दौरान भी कई स्टूडेंट से बात की और उनको बताया कि जी पता तो चल गया कि जी दैट इज समथिंग फिशी. तो क्या अब वो इंस्ट्रक्टर पे होता है कि उसको एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे. तो अगर बार बार तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो लाजमी तौर पे फिर मैं कहूंगा कि एग्जाम नहीं हुआ. और अब तो माशाल्लाह, अब जब आप प्रॉब्ली कल की क्लास में आएंगे तो यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट है. अब हम आप मुझे ये भी नहीं कह सकेंगे कि यहाँ पे ये इंटरनेट नहीं है. तो जब इंटरनेट है तो मैं कहूँगा यहाँ बैठो और एग्जाम दो. तो जो पास होगा वो सर्टिफिकेट लेगा, जो नहीं पास होगा उसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए मसला, सिर्फ वो अपने लिए मसला नहीं क्रिएट कर रहा, वो सबके लिए मसला क्रिएट कर रहा है. सबके लिए मसला ये है कि आपका सर्टिफिकेट आप किसी को बताएंगे कि जी मिसाल के तौर पर मैंने यूपी से ये सर्टिफिकेट लिया है, तो कहेंगे वहां तो 2 नंबर है, तो वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा देगा. लेकिन अगर यहाँ से अच्छे लोग निकलते हैं तो वो बगैर सुने हुए ही आपसे आपकी कई बातों पे एतबार कर लेगा कि जी ठीक है, आप जो कह रहे हैं सच है. तो हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को बुरा वक्त ना नजर आए, अच्छा वो नजर आए कि जी वो जाएं
और कहेंगे कि हम फलाने इदारे से पढ़े हुए हैं, बस वो ही काफी हो, जिसे कहते हैं नाम ही काफी हो। तो जेंटलमैन स्टार्ट लेते हैं विद दी फ्रेम, ईथरनेट फ्रेम। और ईथर मैंने पहले बताया कि इस फ्रेम का तल्लक किस लेयर से है, उसका लेयर डेटा लिंक लेयर से, अपर लेयर्स के साथ नहीं है। और ये भी मैंने बताया कि इसको दो सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अपर लेयर को LLC, जिसको IEEE 802.2 एक्सप्लेन करता है, स्टैंडर्डाइज करता है, जबकि मैं इसकी मैक सब लेयर को 802.3, अगर ईथरनेट है, अगर ईथरनेट नहीं है, वाईफाई है फॉर एग्जांपल, तो फिर 802.11 करता है। अगर टोकन रिंग है तो 802.5 करता है। LLC वही है, टोकन रिंग आपके नीचे सब मैक लेयर बदल रही है। अगर यहाँ पे वाईफाई है तो 802.11 हो गया, अगर ब्लूटूथ है तो 802.4 हो गया, 15 हो गया, अगर ZigBee है तो उसका प्रॉब्ली 1802.15.4 है। इसी तरह अगर WiMAX है तो 802.16 है। तो हर एक की मुख्तलिफ स्टैंडर्ड है मैक का। ओके, अब अगर इसी चीज को हम थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन हालत में देखना चाहें, तो मैं आपकी, क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया कि हम बाकियों को देखने की बजाय सिर्फ किसको देखना चाहते हैं, ईथरनेट को, क्योंकि चैप्टर ही ईथरनेट के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपकी डेटा लिंक लेयर दो में, LLC में और मैक में बदल गई। फिर आपको नजर आ रहा है कि LLC तो सबके लिए एक है, लेकिन आपका यहाँ पे ईथरनेट भी हो सकता है, आपका यहाँ पे WLAN भी हो सकता है, आपका यहाँ पे वाईपैन भी हो सकता है, यानी कि 802.15 भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी बेहतर तस्वीर दिखा सकूं, जो कि दिखानी चाहिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इवन जी, ये आपके सामने मैं ला रहा हूं। जी, ये डायग्राम मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि आपने देखा कि आपके पास, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल किस्म की 802.3 भी हो सकता है, 802.11 भी हो सकता है, 802.15 और भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा स्ट्रेस इस वक्त किस पे है, सिर्फ 802.3 पे। और अगर हमारा 802.3 पे है, तो ये चीज मेरा बताना मकसद है कि इट कैन बी 802.3 ओनली, विच इज 10 megabit per second, और इट कैन बी 802.3 U। हसीब 802.3 U का मतलब है कि इट इज सपोर्टिंग फास्ट ईथरनेट। और साहिब, फास्ट ईथरनेट का क्या मतलब होता है? शाबाश, व्हाट मीन बाय फास्ट ईथरनेट? जिसका स्पीड ज्यादा हो। और याद रखो कि साइंस में, इंजीनियरिंग में कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है जिसको हम कहें ये ज्यादा है, ये कम है। हम नहीं कह सकते ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं ये क्यों ले रहा हूं कि ये अच्छा है, नहीं। दूसरा कहेगा मैं इसको हेट करता हूं क्योंकि ये बुरा है। तो दिस इज नॉट अ साइंटिफिक लैंग्वेज। तो क्या ख्याल है मोहम्मद मोहम्मद नूर जी, फास्ट इंटरनेट से क्या मुराद? 100 मेगाबिट पर सेकेंड स्पेसिफिक है कि अगर इट सपोर्ट्स 100 मेगाबिट पर सेकेंड, इट इज कॉल्ड 802.3U। तो अगर ये स्विच आपको नजर आ रहा है, इस स्विच की जो 24 पोर्ट्स हैं, ये फास्ट ईथरनेट है। ये क्या है? फास्ट ईथरनेट। जैसे मिसाल के तौर पे यही स्विच अगर यही स्विच मैं यहां पे दोबारा दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, पैकेट ट्रेसर,
क्योंकि फिजिकल स्टूडेंट तो यहाँ से देख रहे हैं, देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वालों को दिखाने के लिए इट विल बी नाइस कि अगर मैं यहाँ पे एक स्विच ले लूं और वही स्विच लूं जो कि हमारे पास अवेलेबल आपके लिए आपके यहाँ पे मौजूद है, 2960 सीरीज का स्विच, और इसको अगर मैं यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखाऊं, जूम करके दिखाऊं, तो ये आपको नजर आ रही हैं इसकी मुख्तलिफ इंटरफेसेस नजर आ रहे हैं। तो इस स्विच की ये जो इंटरफेसेस हैं ये फास्ट इथरनेट है। फास्ट इथरनेट से मुराद है कि ये फास्ट इथरनेट से मुराद है कि ये 100 मेगाबिट पर सेकंड सपोर्ट करते हैं। ठीक है मोहम्मद नूर, अब अगर ये बात क्लियर हो गई तो देन वी मूव बैक टू अवर वर्क, और हम कहते हैं कि इट कैन बी 802.3z विच इज गीगाबिट इथरनेट बट ओवर फाइबर। तो आज ही हमने, और जाते वक्त आप देख भी सकते हैं कि हमने अपने स्विच के ऊपर ईथरनेट के जरिए, फाइबर के जरिए, है तो ईथरनेट नेटवर्क, उधर भी ईथरनेट स्विच है और ऊपर भी ईथरनेट स्विच है, लेकिन हमने इसके दरमियान में फाइबर डाल दिया। तो इसका मतलब ये पोर्ट जो है किस उसको सपोर्ट करती है, 802.3z। लेकिन अगर मैं आपको इस स्विच के अंदर दिखाऊं तो इसमें अगर ये पोर्ट्स गीगाबिट है, फास्ट इंटरनेट है, तो इसमें 2 पोर्ट जो है वो गीगाबिट की है, 1 गीग की। तो इसका मतलब ये तो करता है 802.3u, जो इसके फ्रंट के ऊपर थ्रू ए सर्टन मॉड्यूल जिसको कहते हैं SFP मॉड्यूल, SFP मॉड्यूल, उस मॉड्यूल के जरिए हम कनेक्ट किया तो उसको क्या हम कहते हैं, वो 802.3z है। लेकिन अगर वो ईथरनेट के ऊपर आ रही है, यानी वही कॉपर के ऊपर आ रही है, सॉरी कॉपर के ऊपर आ रही है, तो देन इट इज कॉल्ड ओवर कॉपर, इट इज कॉल्ड 802.3 AB, इट इज कॉल्ड AB। और आजकल हमारे पास जो दूसरे कंपनी के स्विचेस हैं, दे आर सपोर्टिंग इवन 10 गीगाबिट पर सेकेंड। तो दिस इज 10 गीगाबिट पर सेकेंड विच इज कॉल्ड 802.3 AE। तो बताने का मकसद कि इवन एक ही टेक्नोलॉजी में जो कि ईथरनेट है, वी हैव मल्टीपल फ्लेवर्स एज वी हैव मल्टीपल फ्लेवर्स इन वाईफाई। कुछ बात समझ आ रही? ठीक है, ओके नाइस। तो यही बात वो यहां पे एक्सप्लेन कर रहा है कि वी कैन हैव मल्टीपल डेज। अब हम आते हैं अपनी, माशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट की कम से कम जो नहीं है वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो कम होती जा रहा है। दैट्स वरिंग पॉइंट। एंड जो हम नहीं कर सकते बस वो नहीं कर सकते। तो जेंटलमैन हमने बात की कि हमारी जो मैक है उसके 2 काम है। एक काम तो क्या है कि वो इनकैप्सुलेशन करे, ही पढ़ा है ना। और इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है, एडिंग दी फ्रेम, एडिंग दी हेडर, एडिंग दी हेडर। जो ही वो हेडर ऐड करता है अपना, अब ऊपर से आया हुआ जो मटेरियल है, ऊपर से आया हुआ जो पे लोड है, दैट बिकम्स, ऊपर से आया हुआ पे लोड बिकम्स फ्रेम, व्हाट वी कॉल इट, फ्रेम। क्लियर? तो यही वो कह रहा है कि जनाब हमने पहला काम 802.3 डेटा इनकैप्सुलेशन में हमें क्या करना है, हमने फ्रेम बनाना, और फ्रेम के बनाते वक्त हम क्या चीज उसमें ऐड करेंगे, हमने देखा कि हम उसके साथ 18 बाइट्स ऐड करेंगे। इस 18 बाइट्स पे हमने इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है 12 बाइट्स के डेस्टिनेशन और सोर्स के एड्रेसेस। डेस्टिनेशन और सोर्स के एड्रेसेस। कौन से एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस, बर्ट इन एड्रेसेस, जो मर्जी नाम दे दें। क्लियर है जेंटलमैन? और फिर आखिर में हम लगाएंगे 4 बाइट्स का एरर डिटेक्शन के लिए FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस, फ्रेम चेक सीक्वेंस,
जिसमें क्या चीज पड़ी होती है, अपने बार बार का इसके अंदर CRC32 है, जिसका काम एरर को डिटेक्ट करना है, एरर को डिटेक्ट करना है। क्लियर एवरीवन? इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, तो अगर आपका यहां तक बात क्लियर है तो वी मूव फर्दर। तो हमने कहा कि जी, और इस बार हमने कहा, पहले भी बात की कि जी हमारे बैंक के दो काम है, एक इनकैप्सुलेशन और दूसरा मीडियम एक्सेस करना, मीडियम को हासिल करना। हमने ये भी कहा कि मीडियम को एक्सेस से दो तरीकों से किया जाता है, एक कंटेंशन बेस्ड, वेरी गुड, कंटेंशन बेस्ड, और दूसरा कंट्रोल बेस्ड। क्लियर है? कंटेंशन की हमने एग्जांपल ली, मिसाल के तौर पे CSMACD या CSMACA, ये हमारे कंटेंशन के मेथड्स हैं, लड़ाई करके लिया जाता है। जबकि हमने कंट्रोल बेस में बात की अबाउट द TDMA, CDMA, FDMA, DAMA. So these are the different methods which are called the control based. लेकिन चाहे ये कंटेंशन बेस्ड है, कंट्रोल बेस्ड है, ये किसका जॉब है, किसका काम है? मैक सब लेयर। जी, इज देयर एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी? मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहिब, सॉरी साहिब, पूरा नाम क्या है? साहिब रहमान जी। तो साहिब, इज इट क्लियर? जी क्या सर? अब्दुल्ला, कोई क्वेश्चन? ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं जी। तो हमने कहा कि जी एक तो ये है, और पहले से एक काम बता दिया कि इनकैप्सुलेशन होगी, और दूसरा काम बता दिया कि आप मीडियम को एक्सेस करेंगे, ठीक है ना? तो क्योंकि हमारा टॉपिक इथरनेट के ऊपर है, तो हमने कहा कि अगर क्लासिकल या ट्रेडिशनल इथरनेट है, ट्रेडिशनल इथरनेट है जो कि या तो इस्तेमाल कर रहा होता है बस टोपोलॉजी, या तो इस्तेमाल कर रहा होता है बस टोपोलॉजी, या तो वो इधर बस टोपोलॉजी पे है, ट्रेडिशनल नेटवर्क, ट्रेडिशनल इथरनेट, ट्रेडिशनल इथरनेट नेटवर्क, या और क्या हो सकता है? एनीवन? जी जेंटलमैन, आप, आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहसन। आप इस क्लास में फर्स्ट डे। तो हम या तो ईथरनेट पे हैं, यानी ये ट्रेडिशनल बस टोपोलॉजी जिसे कहते हैं। कोई और एग्जांपल जिन में आती है? हब, नॉट मैश, मैश इज नॉट लैन, मैश इज ए वैन टेक्नोलॉजी। तो हब, if you are connecting the devices using a hub, again you will be using CSMACD. There is some in the chat. Star, no Laiba. You may call it कि hub is part of star, but hub पे तो switch भी लग सकता है. That's the reason star is not the right answer. Clearly hub, only hub. तो इन दो केसेस में लाइबा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वी आर यूजिंग दी CSMACD, एंड व्हाट इट इज द मीडियम एक्सेस मेथड। मेक सेंस? बोलो, कुछ मसला है तो बात करें। यही तो मैंने कहा कि लाइबा ने ये लिखा है कि स्टार, तो मैंने कहा फिर वो मसला है। अगर मैं ये कह देता कि ये स्विच है, ईथरनेट स्विच है, जो कि हमारा टॉपिक है, हमारा काम ईथरनेट स्विच के साथ है, अगर यहां पे मैं डिवाइसेस लगा दूं तो ये भी तो स्टार है, लेकिन इट इज नॉट यूजिंग द CSMACD, नॉट डिजायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नो कंटेंट, बिकॉज हियर कंटेंशन इज नॉट देयर। यहां पे आप कंटेंट कर रहे हैं, यहां पे आप
यहां पे आप कंटेंट कर रहे हैं, कंटेंशन बेस्ड है, कंटेंट कर रहे हैं, क्योंकि इट इन बोथ केसेस जेंटलमैन इट इज हाफ डुप्लेक्स, इट इज हाफ डुप्लेक्स. So here it is the especially in the hub, in the hub. So here you are using the CSMA CD, and there is some in the chat. I thought the question was about traditional Ethernet topology. Okay, nice. So Laiba, our question is कि मीडियम एक्सेस जब करते हैं, मीडियम एक्सेस करते हैं, तो अगर हम इथरनेट के ऊपर हैं, तो वी ईदर यूजिंग द CSMA CD, and when we are using the traditional Ethernet, where I gave you the two examples. That's the reason I wrote either or. And now I'm using the switched Ethernet. Switched Ethernet. Switched Ethernet. And here I expect from Laiba. Laiba बताओ कौन सा मीडियम एक्सेस यहां पे इस्तेमाल हो रहा है? शाबाश. व्हाट मीडियम एक्सेस मेथड? अगर लाइबा जवाब नहीं देगी तो फिर हमें पूछना पड़ेगा. यस, आई कैन रिपीट द क्वेश्चन. आई एम आस्किंग द क्वेश्चन दैट दिस इज एन ईथरनेट स्विच वेयर माय cursor is moving, and more different devices are connected here, PC1, PC2, PC3, PC10, whatever. The question is that for medium access, what method is being used here? क्योंकि यहां पे तो मैंने बता दिया कि जनाब अगर आप ट्रेडिशनल नेटवर्क पे हो तो you will be using the CSMA CD. But if you are on a switched Ethernet and not on the traditional Ethernet, what medium access method you are using? और अगर लाइबा जवाब नहीं देगी तो डिफरेंट को देना पड़ेगा, और हम किसी से नहीं पूछेंगे. CA, what is CA? CSMA CA. Are you sure, Laiba? Otherwise Shaila is there. Not at all. Think about this. Not sure. That's a good answer. Let me continue that. G. TDME. TDME. Okay. इस पे बात करते हैं. जी. The answer is simple. जब आपका अपना कमरा है, आपकी अपनी कुर्सी है, तो किसी के साथ कंटेंट करने की जरूरत है ही नहीं. हर एक का अपनी अपनी केबल है, कोई दूसरा उसको इस्तेमाल, उस केबल को कोई दूसरा इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, तो फिर कंटेंट करने की जरूरत क्या है? इट इज नॉट कंट्रोल्ड. कंट्रोल में कि आपको कोई बताए, आपको कोई बताए कि जी आपने इस वक्त इस्तेमाल करना है, इस फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करना है, इस कोड को इस्तेमाल करना है. नहीं, जब आपके पास है आप जा सकते हैं. इट्स यूअर्स. सिंपली यहां पे कोई मीडियम एक्सेस मेथड नहीं है. व्हेनेवर यू हैव अ डेटा, सेंड इट. सिंपल. अब बात समझ आई लाइबा? और टीडीएमए इसलिए नहीं शैला कि टीडीएमए होता तो इसका मतलब है कि एक बार जब मैं डेटा भेज रहा हूं तो कोई और नहीं भेजेगा क्योंकि वो टाइम मेरा है. नहीं, यहां पे डेटा है, जब भी है, थोड़ा है, ज्यादा है, सेंड इट. सिंपल. स्विच एवरी पोर्ट. अब की जाके हम देखेंगे एवरी पोर्ट में हैव इट्स ओन बफर, सो दैट डेटा विल गो टू द बफर. बफर में हम आगे बात हमने पहले भी की और फिर भी करेंगे कि प्रोसेसिंग विल बी देयर. बेस्ड अपॉन दिस द स्विच विल सेंड इट, फॉरवर्ड इट, relay it. Whether you use the word forward, relay, switching, whatever you use, it will be sent. Simple. You, Abdullah. Make sense? So there is something in the chat as well, and the chat is saying answer. Clear? Okay. तो आंसर मिल गया आपको? तो आंसर ये है कि यहाँ पे
मीडियम एक्सेस के लिए जरूरत नहीं है कि आप कोई एडिशनल काम करें. वेन एवर यू हैव, सेंड इट सिंपल. जैसे जब आपका अगर अपना कमरा है तो you don't need to take any permission from anyone. That is the reason it is not a controlled. I don't call it a control. Whenever you want to go to your room, just open it and go there. Simple. Clear? ठीक है? Clear? Anyhow, good. So if it is clear, then I move further. इसलिए वो क्या देखें, Ethernet LAN of today. Ethernet LAN of today is the switched Ethernet. तो कहता है uses switches that operate in full duplex communication with Ethernet switches do not require access control. Do not require access control like CSMA CD. Okay, now I come to the frame. What is the syntax and semantic of a Ethernet frame? What is the syntax and semantic of an Ethernet frame? Ladies and gentlemen, if you look, क्या सबसे पहले आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि कभी नहीं पूछते कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंटैक्स किसे कहते हैं, सिमेंटिक किसे कहते हैं, तो शायद नहीं पता, लेकिन फिर भी हम बात नहीं करना चाहते इस पर. Syntax is grammar, order, and semantic is what meaning they have. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जी फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पार्ट को फॉर द टाइमिंग भूल जाऊं, अभी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले ऑर्डर में क्या है, ओके दीज आर द बिट्स और दीज आर हेक्साडेसिमल में भी है. तो हेक्साडेसिमल क्या है, एवरी हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ 4 बिट्स. तो अल्टीमेटली तो बिट्स ही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 48 बिट्स हैं, फिर 48 बिट्स हैं. तो क्या इनके साथ कोई परे लगे हुए हैं कि दे आर डिफरेंट? नो, बट द फर्स्ट 48 बिट्स बिलोंग हैव अ मीनिंग. पहले तो सिंटैक्स हुआ कि पहले 48 बिट का कोई मतलब है, पहले ये देने हैं. क्या है ये? डेस्टिनेशन का एड्रेस, मीनिंग है उसका. फिर अगले 48 का ये मीनिंग है, फिर अगले 2 बाइट्स का यानी 16 बिट्स का ये मीनिंग है. फिर उसके बाद हमारे पास 46 बाइट से लेके 1500 बाइट्स तक का TDU है. डेटा नहीं कहूंगा, TDU कहूंगा, क्योंकि डेटा मोस्टली हम उसको कहते हैं जो कि मैसेज में हुआ है, लेकिन इसके साथ ट्रांसपोर्ट लेयर का और नेटवर्क लेयर का हेडर्स भी शामिल हैं. तो विच कम्स हियर, and then the last 4 bytes is of the CRC32. Is there any question? फाइन है यहां तक बात? ओके, तो यही वो कह रहा है कि जेंटलमैन आपने, अच्छा एक चीज रह गई कि 8 बाइट्स इससे पहले भी, फ्रेम से पहले भी भेजे जाते हैं, जिसमें पहले 7 बाइट्स को प्रीएम्बल कहते हैं, प्रीएम्बल, और आखिरी बाइट को जो 8th बाइट है उसको कहते हैं SFD, जिसको आप स्टार्टर फ्रेम भी कह सकते हैं. ठीक है, दो इसका क्या मकसद है, प्रीएम्बल का क्या मकसद है? देखिए ना, आप किसी के घर भी जाते हैं मोहम्मद नूर, तो या किसी के ऑफिस में जाते हैं, या रास्ते में आपको कोई मिल जाता है, मस्जिद में मिल जाता है, तो आप उसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. ये अस्सलाम वालेकुम अगर हम मजहबी उस पर छोड़ दें बात को, तो यहां पे मकसद ये कि आई वांट टू गेट योर अटेंशन, दैट जेंटलमैन आई वांट टू टॉक टू यू. जैसे गैर मुस्लिम आप क्या कहते हैं, हेलो, हाय. तो हेलो का मकसद है कि जी आप उस बंदे की अटेंशन हासिल करना चाह रहे हैं कि जी इसके बाद जो वर्ड्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी. तो यहाँ पे प्रीएम्बल का मतलब भी ये होता है कि सोर्स और जिसकी तरफ जा रहा है, जो कि मे बी इंटरमीडिएट डिवाइस और मे बी एन एंड डिवाइस, आप उसको बताना चाहते हैं कि आपको एक फ्रेम आने वाला है, रेडी हो जाओ, इन सिंक हो जाओ मेरे साथ. जिस स्पीड पे मैं बोलूंगा आप भी उस स्पीड पे अपने आप को चेक कर लो, इस स्पीड पे बात आएगी. क्लियर मेरी बात? और जब ये हो जाए तो फिर हम उसको एक स्टार्ट ऑफ दी
स्टार्ट फ्रेम का एक बाइट भेजेंगे कि जेंटलमैन इसके बाद जो चीज आ रही है दैट इज एन इंपॉर्टेंट एंड दैट इज 48 बिट ऑफ द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। फिर सोर्स का मैक एड्रेस आएगा, 48 बिट है, अगले 48 बिट ये होंगे। फिर उसके बाद ईथर टाइप, जिसका मकसद ये है कि लाजमी तौर पे अगर मेरे पास, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये डेटा लिंक लेयर है और ये मेरी ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अब और याद रखिए कि आपका जो बाकी पार्ट्स का तो लेंथ हमने बता दिया। मैंने कहा कि आपका मिनिमम जो है वो 46 बाइट्स है और मैक्सिमम जो है वो 1500 बाइट्स है। इसलिए टोटल जो साइज बन जाता है वो along with the header 1518 बाइट बन जाता है मैक्सिमम। मिनिमम 48 बाइट्स आपके पीडीयू के और 18 बाइट्स ऐड कर लो तो इट बिकम 64। अगर इससे कम हो तो हम उसको रंट फ्रेम कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई रंट फ्रेम आ जाए आमिर, अगर कोई रंट फ्रेम, तो आपका स्विच उसको इग्नोर कर दे। और अगर 1500 बाइट से बड़ा हो जाए तो उसको जंबो फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? जंबो फ्रेम, या इसको बेबी गेंड फ्रेम भी कहते हैं, यानी लार्ज फ्रेम इन शॉर्ट। जंबो का मतलब होता है लार्ज। तो आपके जो गीगाबिट ईथरनेट है दैट सपोर्ट्स जंबो फ्रेम्स एज वेल, जबकि स्पेशली आपका जो नॉर्मल ईथरनेट है दैट इज सपोर्टिंग अप टू 1500 बाइट्स। क्लियर है मेरी बात? इज इट क्लियर? ओके, सो जेंटलमैन, इसके बाद मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने वायर शॉक इंस्टॉल की हुई है? 1 2, ओनली 2। व्हाट अबाउट यू? नो? बैड। व्हाट अबाउट यू जगी? तो कल आपके पास मैं आपके साथ में वायर शॉक का लिंक शेयर करूंगा और आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पे ये टूल, यानी पता है कि वायर शॉक होता क्या है? मोहम्मद एहसन? नो? किस डिपार्टमेंट से हैं आप? इलेक्ट्रिकल से। किस सेमेस्टर में? फाइनल। तो जेंटलमैन, ईथरनेट का सॉरी, कोई भी वायर शॉक है क्या? सबसे पहले तो ये बता रहा था वायर शॉक है क्या। वायर शॉक एक ट्रैफिक एनालाइजर है। ट्रैफिक एनालाइजर है, ये प्रोटोकॉल एनालाइजर है, ये स्निफर है, जो मर्जी नाम दे दे। यानी कि अगर किसी भी नेटवर्क, स्पेशली ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स प्लस सिक्योरिटी के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इस टूल को। इसको क्यों कहते हैं पैकेट एनालाइजर? क्योंकि जो भी ट्रैफिक आपके डिवाइस से आ रही है या जा रही है, ये उसको अपने पास कैप्चर कर ले, तो आप उस ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन हम उसको किस परस्पेक्टिव से इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर अ टाइम भी? हम उसको इन 2 पॉइंट से देखना चाहते हैं। नंबर 1, आपने देखा होगा कि जो स्निफर डॉग्स भी होते हैं, स्पेशली पुलिस के पास, आर्मी के पास स्निफर डॉग्स होते हैं, तो वो बता देते हैं कि जी जो भी उनसे उनका मकसद होता है वो सूंघ के बता देते हैं। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि ये भी ट्रैफिक को सूंघ लेता है, ये टूल।
इसलिए स्निफर। और हम उसको इस पर्पज के लिए फॉर टाइमिंग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, विच इज प्रोटोकॉल एनालाइजर। यानी अब आपको पता ना इथरनेट क्या है, एक प्रोटोकॉल है। तो हम इस प्रोटोकॉल को एनालाइज करना चाहते हैं, यानी कि हम इस और एनालाइज करने में हम क्या देखेंगे, हम इसके फ्रेम के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसके फ्रेम के स्ट्रक्चर में क्या है। ठीक है सर, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ा, इसलिए तो बार बार मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि हम अपनी नॉर्मल टीचिंग में कह लें, मोस्टली हम स्टूडेंट को कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं बस उसको हकीकत मान के सब के कह लो कि ठीक है। लेकिन स्टूडेंट एक मसले में रहता है, और स्पेशली नेटवर्क की साइड पे मैंने कई स्टूडेंट से सुना कि वो समझते हैं कि शायद नेटवर्क जो है वो एक कहानी है, सुन लो बस बात खत्म, कहीं इस्तेमाल तो नहीं होती ये कहानी। लेकिन शायद ये कहानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। कौन सा घर है, कौन सा शख्स है इस दुनिया में जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता या जो नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करता। तो दिस कहानी इज नॉट ए कहानी, दिस इज द रियलिटी। तो हमें सिर्फ मसला ये कि हम उन चीजों को देख नहीं सकते, इसलिए हम उस पर शक करते हैं। लेकिन हम इस टूल के जरिए हर किस्म की ट्रैफिक को, हर किस्म के प्रोटोकॉल को एनालाइज कर सकते हैं। और हम ईथरनेट फ्रेम को भी वायरशॉक के जरिए करना चाहते हैं। जकी आपके साथ लिंक पास शेयर करेगा, और उस लिंक के जरिए आप पहले वायरशॉक को डाउनलोड करेंगे, फिर आपको हम डॉक्यूमेंट देंगे, उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए आप इसको इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर पे कल आएंगे। जी, इज देयर एनी क्वेरी, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर? ये भी क्लियर हो गया कि वायरशॉक करने से आप दो फायदे लेंगे। एक तरफ तो आप इसको अपने टूल में इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, दूसरी तरफ आप इसको अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर लेंगे कि जी मुझे वायरशॉक पे काम करना आता है। ये कल किसी भी शख्स को इस टूल के मुकाबले में बंदा चाहिए होगा, और आपका रिज्यूमे देखेगा तो कहेगा आज वो भाई इंटरव्यू के लिए पहुंचा है। बाकी प्रूफ आपने इंटरव्यू में खुद करना होता है, इसलिए कहता हूं चीट मत करो, क्योंकि वो चीटिंग वहां पकड़ी जाएगी। अगर मैं छोड़ भी दूंगा तो वहां पकड़ी जाएगी, तो बेइज्जती है कि आप इतना टाई लगा के वहां जाएंगे कि जी इंटरव्यू लगा गले में, और वो 5 मिनट में कहेगा कोर्ट तजा, कितनी बेइज्जती है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज नहीं समझ आती, आपसे कभी भी नहीं कहा कि मत पूछो, पूछो। फिर तो कल हम इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। आज हम साथ दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको पहले से भी पता है, एंड दैट इज द ईथरनेट का मैक एड्रेस। और एसन ये एड्रेस किस, अगर लेट करेंगे मेरा पीसी है, ये मेरा पीसी है, ये मैक एड्रेस कहां पे होगा? अगर ये मैक एड्रेस है, सॉरी पीसी है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, व्हाटएवर, ये मैक एड्रेस कहां होगा? एनआईसी पे। एनआईसी पे अभी हमें प्रोवाइड कर देगा कि ये है एनआईसी। इन लोगों ने मेजॉरिटी ने देखा हुआ है, और स्पेशली उम्मीद करता हूं कि मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट ने भी देखा हुआ है। लेकिन अभी दोबारा भी हम आपको दिखा देते हैं कि आपके डिवाइस के ऊपर एक अदद एनआईसी कार्ड है, एनआईसी कार्ड है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, और फिजिकल वालों को भी नजर आ रहा है। यानी ये मुझे आप में से कौन बताएगा कि अगर ये ईथरनेट है तो ये कौन कौन से मीडियम्स पे काम कर सकता है? ईथरनेट किस मीडियम्स पे काम करता है? कोएक्सियल, फाइबर एंड कॉपर। कोएक्स भी कॉपर है, इसलिए प्रॉपर लफ्ज इस्तेमाल करो, यूटीपी और एसटीपी। तो ईथरनेट
तीन मीडियम्स के साथ, और इसमें आपको दो नजर आ रहे हैं, वन इज कोएक्सियल एंड द अदर वन इज द यूटीपी एसटीपी। और दो इसके अलावा ये अभी हमने देखा ईथरनेट ऑन फाइबर। क्लियर एवरीवन? एंड देयर इज समथिंग इन द चैट, एंड द चैट इज सेइंग NIC। गुड सुमैया, कॉपर फाइबर कोएक्स। तो देखें सुमैया ने घर से बीमार होकर भी आपको जवाब दे दिया। कहते हैं फिजिकली बैठे हुए जवाब नहीं देंगे, मैं ही बता दूं, बीमार भी हूं फिर भी बता रही हूं। इज इट क्लियर आसन? ओके नाइस। तो जेंटलमैन, हमने कहा कि जी ये और अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को देखना चाहें तो व्हाट यू हैव टू डू, क्या स्क्रीन पर नजर आ रहा है? शाबाश। adding some library to the Python, adding some library to the Python. And what library or packages? It is pytz pandas cbot. तो इसको फॉर टाइमिंग हम भूलते हैं, ये आपके कोर्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आई एम यूजिंग IP config FIG/all, सॉरी जी। तो आप देख सकते हैं हर कार्ड का अपना 48 बिट का एड्रेस है। देख लो कोई कार्ड, अगर ये कौन सा कार्ड है इस वक्त आप देख रहे हैं? ब्लूटूथ। अब हम जाते हैं औरों को भी एक दो देख लेते हैं ताकि हमारा ये खत्म हो जाए। अगेन वी हैव ए वायरलेस लैन, एंड वायरलेस लाइन वाईफाई जिसे आप कहते हो, दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ दिस कार्ड। ठीक है सर? देन इफ यू लुक एट हियर फर्दर, अगर फिर भी हमें शक शुबा भी है, तो वी हैव द वाईफाई कार्ड एंड इट्स मैक एड्रेस इज दिस वन, वायरलेस AC 9560 160 मेगाहर्ट्ज का ये कार्ड है और इसका ये मैक एड्रेस है। फिर भी आपको शक शुबा भी है, जो कि अब नहीं होना चाहिए। अगर हम ये देखें तो एक वर्चुअल इंटरफेस है और उसका मैक एड्रेस ये, जिसको फिजिकल एड्रेस कह लो, मैक एड्रेस कह लो, बर्ट इन एड्रेस कह लो, दिस इज द मैक एड्रेस। क्लियर एवरीवन? और अगर मैंने अभी आपके सामने इथरनेट का वो दिखाया था, तो इसमें चेक कर लेते हैं जी। यहां भी ये मैंने इसके ऊपर अपना कर्सर रखा तो नजर आ रहा है आपको आखिरी कॉलम क्या दिखाई दे रहा है? मैक एड्रेस। सो एवरी पोर्ट इज नथिंग बट an NIC. Every port of the switch is nothing but a NIC having a MAC address. Is there any question, Sahib? हारून? नहीं। ओके। तो जेंटलमैन, यहां से हमें पता चल गया कि मैक एड्रेस क्या है, एटलीस्ट हमें यहां तक समझ आ गई। अब हम आते हैं कि इस एड्रेस के, इस मैक एड्रेस के दो हिस्से हैं। ये टोटल तो हमने कहा कि 48 बिट्स या 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स या 6 बाइट्स पे मुश्तमिल। क्लियर है एवरीवन? आपको इतना तो सबको ही, क्योंकि कोई भी या तो इंजीनियरिंग के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं, तो आपको ये पता है कि यू कैन रिप्रेजेंट द नंबर इन डिफरेंट वेज। लाइक नॉर्मल लाइफ में जब हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज डेसिमल, शल रुपये वर्ग का, 50 रुपये वर्ग का, तो दिस 50 20 इज डेसिमल एंड यू हैव योर IP एड्रेस इन दिस फॉर्मेट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहां पे देखें तो हर एक इंटरफेस का मेरा एक IP एड्रेस भी है। लाइक हियर यू कैन सी 192.168
168.63.1. So what these number represents? Decimal. So this is in the decimal notation. That's the reason it is mostly called dotted decimal notation, because they are the dots, and in between the dot there is decimal. Moreover, you can see here that my MAC address is, physical address is in the hexadecimal. So this is the first byte, 00. 50 is the second byte. Third byte is 56. Fourth byte is C0. 00 and 08. Total 6 bytes. Here is another address as well, which is in the hexadecimal as well. And that is which address? IPv6 address. So we'll talk about the IPv4 and IPv6 in the later part of our course. No worries. लेकिन यहाँ पे मकसद मेरा सिर्फ ये बताना है कि you can represent the number in different ways. So hexa, this card is representing, or MAC address is represented by in hexadecimal, where the numbers belong from 0 to 9, 0 to 9, and A to F. Am I right? और मोस्टली उसके पीछे एक 0x लिख दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूजन में न चले जाएं कि ये डेसिमल नंबर है. जैसे अब ये लिखा है 0x73, इसका मतलब दिस 73 is or even 0x AB, this is hexadecimal, क्योंकि मैंने भी बताया कि 0 to 9 and A to F. Clear everyone? Okay. If it is clear, then we move further and we show you that, gentlemen, this MAC address is unique globally. This is unique and this is unique globally. क्या मतलब है नहीं इसका कि यूनिक ग्लोबली अलग? क्या ख्याल है मोहम्मद नूर? कहने का इसका मकसद ये है कि अगर जो मैक एड्रेस मेरे इस कार्ड का है वो किसी का और नहीं हो सकता. और ग्लोबली इसलिए लिखा कि भाई दुनिया भर में किसी का नहीं हो सकता. क्लियर है मेरी बात? अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कैसे मुमकिन है कोई एक दुनिया में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही होती तो हम कह सकते थे भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम का एक नंबर जब किसी को दे दोगे तो दूसरा को नहीं दोगे, वही नंबर किसी और को नहीं दोगे. बात समझ में आ जाती. लेकिन देयर आर न्यूमरियस ऑर्गेनाइजेशन विच आर मेकिंग दीज कार्ड्स. तो फिर कैसे मुमकिन है? मिसाल के तौर पे ये कार्ड इंटेल भी बना रहा है, सिस्को भी बना रहा है, वावे भी बना रहा है, और कंपनीज भी बना रही हैं. तो कैसे मुमकिन? तो द आंसर इज कि जेंटलमैन, ये इंटरनेशनल बॉडी से जिस मिसाल के तौर पे कल कैसर कहता है जी मैं अपनी कंपनी बनाता हूं जो कि एनआईसी कार्ड बनाएगी, चाहे वो ईथरनेट के लिए बनाए, चाहे वो वाईफाई के लिए बनाए, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए बनाए. हम यहाँ पे ईथरनेट की बात कर रहे हैं. तो साहब इस कंपनी ने जाके 24 बिट अपने रजिस्टर करवाने हैं, यानी इसको 24 बिट्स या 3 बाइट्स इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएंगे. और ये 3 बाइट्स कोई भी दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता. इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर. इन पहले 3 बाइट्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर. मिसाल के तौर पे अगर ये सिस्को को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके ये वाले नंबर, ये 3 बाइट सिस्को के अलावा कोई भी नहीं इस्तेमाल करेगा. और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट 3 बाइट्स हैं वो इस वेंडर की मर्जी है, जो मर्जी लगा दे. आपको पता है कि अगर ये 24 बिट्स हैं तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 0000 एंड सो ऑन अप टू 1111 एंड सो ऑन. ऐसा ही है ना?
तो क्योंकि ये नंबर यूनिक है तो इसके साथ कोई भी नंबर यहां से कोई लगा ले, द ओवरऑल नंबर विल बी ग्लोबली यूनिक। कुछ बात समझ आ रही कामरान? सर ये 3 बाइट्स जो होते हैं ये मतलब मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ ना, तो ये 3 बाइट्स मुझे कौन देगा? जी किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आप इसके लिए जैसे हमारा आईपी एड्रेस हमें मिलता है तो देयर इज ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह वही ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली मुझे नाम इंटरनेट ना अभी बता देता हूं। और इसकी 5 रजिस्ट्रीज हैं, वो भी बता देता हूं। जी ये अयाना इंटरनेट असाइन अथॉरिटी नंबर्स अथॉरिटी, तो इस अयाना की 5 रजिस्ट्रीज हैं दुनिया भर में। तो आप अयाना के पास लाजमी तौर पे एक आईपी के लिए तो आप उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सिस्को हैं, आप हवावे हैं, आप इंटरल हैं, कोई भी हैं, तो आप इसके पास जाएंगे कि जी आई वांट दिस, तो वो जो अनयूज कोई भी 24 बिट्स हैं वो आपके हवाले कर देगा। ठीक है? नहीं क्लियर है वो? और कोई क्वेश्चन? शाबाश। तो ये 24 बिट आपने एना से ले लिए और उसके बाद अगले 24 बिट आप जो मर्जी इन क्योंकि आपको पता है कि 2 पावर क्योंकि 24 बिट्स हैं, आप 2 पावर 24 डिफरेंट कार्ड्स बना सकते। उसके बाद नासिर सोच रहा है कि अगर ये मैंने 2 पावर 24 कार्ड बना दिए तो क्या मैं अपनी कंपनी बंद करके घर चला जाऊं? तो आंसर है नहीं, आप अगले 24 बिट्स के लिए अप्लाई कर लेंगे तो फिर आप 2 पावर 24 और कार्ड्स बना सकते हैं। खत्म हो जाए आप अगला 2 पावर 24 बिट्स ले लें और इस तरह आपका काम चलता जाए। क्लियर है मेरी बात? तो इस वजह से इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए यूर मैक एड्रेस इज यूनिक एंड ग्लोबली यूनिक। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, आई नीड एनी डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? जुनेद, कायनात, लाइबा, आमिर, इज देयर एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन करेंगे तो क्लास में आपकी मौजूदगी का पता चलेगा। जी सुदेश, राबिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? शाबाश, come on, if you have any question, come on, I am listening to you. जी सुमैया, do you have any question? नो सर। ओके, राबिया ने सबके सबके बिहाफ पे जवाब दे दिया नो सर। So we go to the chat and chat is also saying no sir. Okay, nice. तो हमें पता चल गया कि मैक क्या है और किस तरह ये मिलता है। आमिर भी कहता है ठीक है, कायनात भी कहती है कि सब सब दुरुस्त है। ग्रेट जी। सो अब मैं आता हूं अबाउट दी फ्रेम। अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमारा फ्रेम है और वो भी आपको बता दिया उसका स्ट्रक्चर, उसका सेंटेक्स, उसका सेमेंटिक, हर एक बाइट का या ग्रुप ऑफ बाइट्स का मीनिंग बता दिया कि सबसे पहले क्या चीज होगी, डेस्टिनेशन का एड्रेस। although इससे पहले बताया कि आपके पास प्रीएम्बल आएगा, बताया ना, लेकिन प्रीएम्बल इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द फ्रेम। कोई फ्रेम पूछता है तो इट स्टार्ट फ्रॉम द डेस्टिनेशन एड्रेस, then you have the local source address, source MAC, then you have the ether type, then you have the ether या just type लिख देता हूं,
2 bytes. 2 bytes. Like for example, 0x0800. How many bytes are these? 4 bits. मोहम्मद का कहना है कि ये मैंने जो लिखा है ये 4 बिट्स हैं. क्या ख्याल है अब्दुल्ला का? बिट्स हैं. गुड आंसर. क्या ख्याल है मोहम्मद हसन? 4 बिट्स हैं. कंप्यूटर गाय आप गलत ना बताना. क्या है? कितने बाइट्स? 4. जेंटलमैन जागो. अभी बताया कि 0x लगा वो पीछे तो क्या कौन सा नंबर है? हेक्साडेसिमल. और ये कौन से इंजीनियर हैं जो 8 को बिट कह रहे हैं? 8 लिखा हुआ नजर आ रहा है और कहते हैं ये बिट है. ये 8 नजर आ रहा है ना? 8 बिट तो होगा 0 और 1. हाउ इट कैन बी 8 और 9 और समथिंग लाइक दिस? Is it clear? It is not the bits. तो 0x बता रहा है कि इट इज हेक्साडेसिमल. अगर हेक्साडेसिमल है, अगर ये हेक्साडेसिमल है, अगर ये हेक्साडेसिमल है जेंटलमैन, तो फिर ये 1 बाइट और ये 2 बाइट. इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बाइट लिखा भी है. फिर भी आप नहीं देख के बता रहे. क्यों क्या सर? ठीक है. अगर ये ठीक है तो कायनात बताएगी कि इसका मकसद क्या है. जैसे मैंने 0800 लिख दिया, या इफ आई रिमेंबर करेक्टली 0x08DD लिख दिया. क्या मतलब है इसका? जी कायनात. वरना क्लास फेलो होना का हक अदा करना पड़ जाएगा. शाबाश. मकसद क्या है ईथर टाइप का? बस वही यहां मैंने लिख दिया है. तो कायनात जवाब नहीं दे रही. वो कहती है कि हक अदा किया जाए तो बेहतर है. हमें क्या है भी कि नहीं है तो सही. जी कायनात इज हियर. लेकिन जवाब ना देने का मकसद मैं समझ गया कि वो कहती हैं कि जो जिनका काम है वो बताएं. जी जेंटलमैन, ये बताता है कि पहले ये बता दूं कि ये टाइप बताती क्या है. ये बताती है कि जब ऊपर की लेयर से यानी कि नेटवर्क लेयर से या इंटरनेट लेयर से जब डेटा लिंक लेयर को या मैक सब लेयर को मिलेगा पेलोड, तो कौन देगा? या तो IPv4 देगा, या IPv6 देगा, या मे बी ARP देगा. तो दिस अगर ये लिखा हुआ है, ये लिखा गया तो इसका मतलब है कि ये IPv4 ने दिया है. अगर ये लिखा गया तो इसका मतलब क्या है? IPv6 ने दिया है. कितना मुश्किल बात है. अब कुछ चैटर भी नजर आ गया है. ओके, तो आई एक्सप्लेन के IPv4 एंड IPv6. बात समझ आ गई? अब दो मैंने कहा कि क्लास फेलो को जवाब देना पड़ेगा, वो समझी कि मेरे लिए ये क्वेश्चन, तो अच्छी बात है. ठीक है लाइबा. सो वी मूव फर्दर. तो कहने का मकसद ये है कि ये बताता है कि किसने दिया है. ठीक है मोहम्मद. सवाल ये है लगाने की जरूरत क्या है. और ये याद रखें कि साइंस में आप ये नहीं कह सकते कि बगैर वजह के. नथिंग हैपन्स. ना रब ने कभी किसी चीज को बगैर मकसद के पैदा किया है, और ना इंजीनियर और साइंटिस्ट किसी चीज को बगैर रीजन के बनाता है. तो इसलिए दिया गया जेंटलमैन कि कल ये पैकेट लेट करेंगे. एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, यहां से डेटा यहां जा रहा है.
तो अगर यहां पहुंचेगा, डेटा लिंक लेयर के पास पहुंच गया, तो वो ऊपर IPv4 को दे कि IPv6 को दे कि ARP को दे, किसको दे? अगर IPv4 का है और IPv6 को दे दिया तो क्या होगा उसके लिए? गार्बेज। IPv6 का है और ARP को दे दिया तो क्या है उसके लिए? गार्बेज। वो सिंपली इसको डिस्कार्ड कर देगा। दैट द रीजन योर मैक लेयर और द डेटा लिंक लेयर मस्ट नो किसको देना है ऊपर। क्यों नहीं? बात समझ आ रही? इसलिए ये आपका टाइप है। इसके बाद आपका, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसके बाद आपका पेलोड, या जिसको आप या यू मे कॉल इट पेलोड, और उसके बाद आपका 4 बाइट्स का CRC। तो क्या मैंने पूरा का पूरा फ्रेम, जो कि कल हम देखेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं। तो साहिब हम कैसे देखेंगे, क्या करेंगे? हमें देखना हमें नसीब हो जाए, वायर शॉक इस्तेमाल करेंगे। तो कल हम वायर शॉक इस्तेमाल करके ये चीज देखना चाहते हैं। Where everyone? तो अगर ये ट्रैफिक आपने दिखानी है YouTube, तो कल इनके लिए एक स्विच और उसके पहले और 2 कंप्यूटर एटलीस्ट तैयार हो, उन पे वायरशॉक इंस्टॉल्ड हो, ताकि एक से दूसरे की तरफ कोई फाइल वगैरह ये पास ऑन करें, किसी फोल्डर पे वो लगा दें। ये टास्क आपने किया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं भी किया वो भी देख लेंगे कि किस तरह कोई भी चीज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे थ्रू इंटरनेट स्विच जाती है। तो और उसको हम कैप्चर करके फिर दिखा भी दें। ठीक है, ओके जी। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। आपकी मर्जी जी, जब क्वेश्चन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बता रहा है कि फ्रेम प्रोसेसिंग कैसे में क्या होता है। जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा सोर्स है, तो सोर्स का लेट करो कि मैक एड्रेस ये है। मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो आपको ज्यादा क्लियरली नजर आ जाएगा। अब नजर आ रहा है? तो उसका सोर्स का मैक एड्रेस ये है, मे बी AA एंड डेस्टिनेशन का है CCCCC, कुछ भी, एनी 48 बिट्स। जब इसने अपना फ्रेम बनाया तो इसने पहले आपको अभी बताया कि इसने डेस्टिनेशन का एड्रेस लगाया, ये डेस्टिनेशन का एड्रेस, फिर इसने सोर्स का एड्रेस लगाया, फिर इसने टाइप लगाया, फिर इसने पेलोड लगाया, फिर इसने CRC लगाया और स्विच के हवाले कर दिया। फॉर द टाइमिंग हम एज्यूम करते हैं कि स्विच को नहीं पता कि डेस्टिनेशन CCCC कहां है, तो वो सबकी तरफ इसको फ्लड कर देगा। क्या कर देगा? फ्लड कर देगा। अब क्या होगा? लेट करें कि H1 ने भेजा, H3 को रिसीव हुआ। पहले चले हम एज्यूम कर लेते हैं कि H2 को, सबको इकट्ठा हुआ, लेकिन हम एक एक को स्टडी कर रहे हैं। ये कहता है कि जी मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस CCCC नहीं है, तो इसने इसको इग्नोर कर दिया। इसने भी H4 ने भी कहा CCCC एड्रेस मेरा नहीं है, इसने भी इसको इग्नोर कर दिया। जबकि H3 ने कहा कि हाँ ये एड्रेस है तो मेरा है, दिस इज माइन, तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो बेसिकली पहले 6 बाइट से ही पता चल जाता है कि क्या मैं इसको प्रोसेस करूं या मैं इसको रिजेक्ट करूं। ठीक है, देन ये एड्रेसेस जिस तरह के हम आईपी से उसमें भी पढ़ेंगे आईपी में, कि ये एड्रेसेस यूनिकास्ट भी हो सकते हैं, मल्टीकास्ट भी हो सकते हैं,
और ब्रॉडकास्ट भी हो सकते हैं। सबसे पहले ब्रीफली बता दूं कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट कहते हैं इसे। जेंटलमैन, यूनिकास्ट का मतलब है कि अगर आप 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके लिए जो एड्रेस इस्तेमाल होगा डेट विल बी ए यूनिकास्ट एड्रेस। जैसे मिसाल के तौर पे इसके ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि इस कार्ड के ऊपर 848 बिट लिखा हुआ है। अगर आप में से कोई यहां पे कोई डेटा भेजता है तो इसका मैक एड्रेस डेस्टिनेशन में लगाएगा, एंड देन दिस विल बी कॉल्ड एज a unicast address. What it should be called as a unicast address. इसके मुकाबले में अगर आप चाहते हैं कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे, लैन पे जितने भी डिवाइसेस हैं सब ये सुने, सब इसको प्रोसेस करें, तो देन यू विल बी यूजिंग द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लाजमी तौर पे मोहम्मद नूर भी ये सोच रहा है और एहसन भी ये सोच रहा है कि जी क्या जरूरत है कि सबको कुछ चीज दी जाए। आंसर ये, मिसाल के तौर पे आप ये चेक करना चाहते हैं कि जी लाजमी तौर पे किसी का आईपी एड्रेस है, मिसाल के तौर पे आईपीए, आप उसका मैक नहीं पता पूरे नेटवर्क में, तो आप क्या करेंगे? ब्रॉडकास्ट करेंगे। देखे ना, मैं आपको किसी क्लास में भेजूं और वहां पे मैं आपको कहूं कि जी मिसाल के तौर पे नोमान है उस क्लास में, उसको बुला लें, आपको नोमान का नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? आप क्लास में जाके आवाज लगाएंगे कि है कोई इस क्लास में नोमान? अगर होगा तो हैंड रेज कर देगा और आपको उसे कहेंगे रशा। तो आपने क्या किया? ब्रॉडकास्ट किया, सबकी तरफ आवाज पहुंचाई। तो इसके लिए वी विल बी यूजिंग दी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। व्हाट विल बी यूजिंग? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। फाइन। जबकि बाज़ औक़ात हमें सबको, ना हमें एक को देना होता है ना हमें सबको देना होता है, बल्कि 2 और मोर को देना होता है, यानी ग्रुप को देना होता है, तो वी कॉल इट ए मल्टीकास्ट। तो ये बात यहां पे ये बता रहा है कि यूनिकास्ट मैक एड्रेस इज ए यूनिक एड्रेस, although we have less than a minute, चलें खैर, unique address that is used when a frame is sent from a single transmitting device to a single destination device. Simple. ठीक है, यहां पे वो कह भी रहा है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आर्प आप किस तरह लिए, इस अमल को आर्प कहते हैं कि आपको आईपी पता हो और उसका डेस्टिनेशन होना पता हो, मैक, तो यू यूज आर्प। तो ये कहते हैं द प्रोसेस दैट सोर्स यूजेस टू डिटरमिन द डेस्टिनेशन। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग। ओके, तो जेंटलमैन, मैंने कहा कि अगर आपने यूनिकास्ट इस्तेमाल करना है तो जो उसका ग्लोबली यूनिक एड्रेस है वो आप इस्तेमाल कर लेंगे। जो आपका ग्लोबली यूनिक, अभी मैंने आपको बताया, मिसाल के तौर पे मैंने आपको अपने डिवाइस में मुख्तलिफ एड्रेसेस दिखाए, ऑल ऑफ देम ग्लोबली यूनिक एंड दे आर यूज फॉर unicast communication. If it is broadcast, it is all ones, it is all 48 ones. आप कहेंगे कि जी इसमें तो ऐसी कोई चीज बाइनरी में नहीं है, ये तो हेक्साडेसिमल, उसमें हेक्साडेसिमल में, दैट द रीजन इट इज ऑल एफ्स। तो 6 बाइट्स, ये 3 हो गए, इस तरह 3 और भी, तो इट बिकेम ऑल एफ्स। तो अगर आप ऑल एफ्स के साथ कोई पैकेट भेजेंगे, दैट विल बी रिसीव बाय ऑल। ठीक है नहीं?
तो ये दो तो क्लियर हो गए। एक दरमियान में रह जाता है मल्टीकास्ट। कौन सा? मल्टीकास्ट। तो जेंटलमैन, द मल्टी, जैसे मैंने बताया कि ब्रॉडकास्ट इज ऑल एफ्स। अगर कोई इस एड्रेस से, आप जैसे देखिए इसने ऑल ऑल एफ किया है, यहां पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑल एफ्स का डेस्टिनेशन है। तो जितने भी वहां पे डेस्टिनेशन, जितने भी वहां पे होस्ट हैं, सबको ये इंफॉर्मेशन दे दी गई। क्लियर है हुआ? जबकि मल्टीकास्ट में आपके पहले जो 3 बाइट्स हैं वो ये होते हैं। अगर ये IPv4 का पैकेट है, अगर आप कोई भी IPv4 का मल्टीकास्ट पैकेट बनाना चाहते हैं, तो मैक में पहले 3 बाइट्स क्या होंगे? 01005। क्लियर? ये जरूरी है। और आप अगले कोर्स में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, STP। अब इसमें क्या होता है, स्विचेस आपस में बात करते हैं, एंड डिवाइसेस की बात करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये मैसेज किसको, क्या किस कैटेगरी में आएगा? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट के ब्रॉडकास्ट? मल्टीकास्ट। शाबाश। ऐसा किस कैटेगरी में आएगा? क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास लेट करो ये स्विचेस हैं, 3 स्विचेस हैं, और इन 3 स्विचेस के साथ डिवाइसेस लगे हुए हैं लाइक दिस, these switches have to talk to each other. For what reason वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। The reason is STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम राधिया पर्लमैन का इस पे चलना है। तो यहां पे द कम्युनिकेशन will be a unicast one or a multicast one or a broadcast one. Unicast, broadcast, broadcast। किसने कहा मल्टीकास्ट? ओके, देयर इज समथिंग इन द चैट एज वेल। आमिर कहता है ब्रॉडकास्ट, ऑनलाइन वाले तो ब्रॉडकास्ट में। लेकिन अच्छी बात है कि क्लास में जो भी कुछ कहे, कम से कम इससे जमहूरियत नहीं है। बात तो समझ गए होंगे। तो जेंटलमैन, अंडरस्टैंडेबल, इट इज मल्टीकास्ट। यहां पे देखें ना, ये डिवाइसेस भी हैं, लेकिन इनको तो नहीं मिल रहा STP के पैकेट्स, इनको तो नहीं मिल रहे, सिर्फ इस S1 को, S2 को और S3 को मिलेगा। तो इट मीन नॉट ऑल, ओनली अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस आर प्रोसेसिंग दीज पैकेट्स। ऐसा ही है ना? तो देयर इज नो रीजन टू कॉल इट यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट उस केस में होता है कि इन सबको मिलता, तो सबको तो नहीं मिल रहा STP के पैकेट्स। बात समझ आ रही? तो दैट इज द रीजन these devices here, the example of your STP spanning tree protocol, कि अगर आप इस मैक एड्रेस से जाएंगे, it will be only these three or more, whatever the number of switches are, they will be part of a multicast group and they will be sharing these messages, and these messages will never be going to the end devices. इसका मतलब यूनिकास्ट की भी अपनी जरूरत है, मल्टीकास्ट की भी अपनी जरूरत है, ब्रॉडकास्ट की भी अपनी एक जरूरत है। दैट द रीजन दे आर देयर। क्लियर एवरीवन? तो जेंटलमैन, प्रॉब्ली इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और कल हम इस एड्रेसेस को इस्तेमाल करके, और वायरशॉप को भी करेंगे थोड़ा और काम करने के बाद, वी विल बी ऑन दी मैक एड्रेस टेबल इंशाल्लाह, और देखेंगे कि मैक एड्रेस टेबल क्या है और स्विच में उसका क्या रोल है। इसलिए कल की क्लास ज्यादा मजेदार होगी, इसलिए मिस करने की जरूरत नहीं। स्विच को एक एड्रेस मतलब एक स्विच स्विच को
तो सारा तो ब्रॉडकास्ट करेगा या सिर्फ डेडिकेटेड यूजर पे? यही बात हम फॉरवर्डिंग पे जब आएंगे तो यही बात हम करेंगे कि इस टेबल को इस्तेमाल करके स्विच कोशिश ये करेगा कि अगर ये सोर्स है और ये इसकी डेस्टिनेशन है और लाजमी तौर पे और डिवाइसेस भी यहां लगे हुए हैं, लेकिन ये जब पैकेट इसके पास आएगा तो ये सिर्फ डेस्टिनेशन की तरफ भेजेगा और औरों की तरफ नहीं भेजेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि स्विच जो है ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। जबकि इसके मुकाबले में अगर ये हब होती, स्विच के बजाय हब होती, तो एक से आया सबकी तरफ भेज दिया जाता, चाहे तुम्हारा है या तुम्हारा नहीं है, यू हैव टू टेक इट। तो यू आर वेस्टिंग दी प्रोसेसिंग मेमोरी एवरीथिंग। सो दैट द रीजन वी कॉल इट इज अ डंप डिवाइस। सीखता ही नहीं है कभी अपने काम से। इसलिए हम कहेंगे कि स्विच में जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसमें नंबर 1 टास्क ये है कि लर्निंग करता है। ये वो इंसान भी कामयाब जो लर्निंग करता है और वो डिवाइस भी कामयाब जो कि लर्निंग करता है। एआई क्यों आप कहते हैं जी अच्छा है? क्योंकि लर्निंग करता है और फिर इस लर्निंग के बेस के ऊपर स्विचिंग करता है। जबकि हब साल भी लगा रहे तो लर्निंग नहीं करता, इसलिए वो स्विचिंग नहीं करता बल्कि फ्लडिंग करता है। जवाब मिल गया आपके सवाल का? ओके, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेशली फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट फर्स्ट? सो इससे पहले बताता चलूं कि Zaki has already shared with you the link to download Wireshark, and I hope that you will be downloading it, and we will be providing you a document which will show you how to. There is no difficulty in here. जस्ट एक पॉइंट का ख्याल रखना होगा, वो आपको उस डॉक्यूमेंट में पता चल जाएगा, और कि कोई एक चीज आपने जो कि यूएसबी के रिलेटेड है वो नहीं, उसको टिक नहीं करना। बाकी नेक्स्ट 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 है, उसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, लेकिन हाँ वी विल बी शेयरिंग विद यू दैट डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह, ताकि आप उसको आज इंस्टॉल कर लें। जी, यूएसबी कैप को इंस्टॉल नहीं करना, बाकी सबको करना है, लेकिन स्टिल वी विल बी शेयरिंग विद यू दी डॉक्यूमेंट। जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Any question from the physical students? जी कैसर? Anyone? Sahib? Muhammad Noor? Hassan? No? So I stop here and inshallah see you tomorrow at 3:30. Till then, Allah Hafiz.